Hi everyone, I'm here with Karthik. Casual talks with Karthik. Hey, hi. Thank you for the introduction. How are you, Sagar bhai? Good bro. जैसा इंट्रोडक्शन सुना है, एक तेलुगु में एक वेब सीरीज है, उसमें कार्तिक का नाम बहुत फेमस है। पीछे से बैकग्राउंड आएगा कार्तिक 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 कर Karthik calling Karthik. ऐसा है क्या? वही याद है मुझे तो। एंड बाय द वे, आई एम डॉक्टर पवन सूर्यसेट्टी, वंस अगेन ऑन द फ्रेम। प्लीज डोंट गेट इरिटेटेड विद माय वर्ड्स। आई एम हियर विद सागर भाई। Thank you for honoring this. तो सागर भाई कैसा लग रहा है? कपिल शर्मा एक तरफ, सपना शो एक तरफ। So first time on the hot seat. करण जौहर का छोड़ दिया। भाई कॉफी कुछ है नहीं है आपके पास? कोल्ड ड्रिंक पियोगे? कोल्ड ड्रिंक चल जाए, लाओ भाई कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। बट ब्रांडिंग होगा ना फिर उसका। ब्रांडिंग में आता है। अंदर का लिक्विड तो रात- करना बस। So सागर भाई, Yes. so how is this season treating you? So season is just gonna start. Usually दिवाली के बाद में season start होता है हम लोगों का, and जो हम लोग अभी तक देख के आए हैं, season was not that good because of so many things going on. शायद सभी के साथ में ऐसा था, but now it's looking positive, quite positive, and mostly everyone in this industry will get good business. Related to this business, this industry also will get good business. So it will be amazing 2026 actually. That's a prediction that everyone is saying about 2026. So let me take this opportunity to give a formal introduction about Sagar. Sagar is the owner of Casa Lives. He is into wedding planning, decorations. He makes pandas. Does a lot of things. So Anything related to events in any Cali. related to events, he is the man to go for. So that is what we are going to talk about. So, His business today, his experiences, and Pawan's risk. So like kind of all the events, wedding, corporate events, conferences, You name it, we do it. everything in the market, right? Yes, why not? Why not everything? Sagar bhai, Yes. please share your experience, like how good. you got into this. और कुछ funny experiences भी चलेगा इसमें। Yeah, What's the- we'll start. क्या face किया आपने क्या है? Let's get into how you started. How you got into this market, and अभी what is the status of Casa Lives? कैसा है, कहाँ है? And then from there we can take it forward. So it was never a plan to be into events. I completed my MBA. Then Films. Yeah, we have drinks for you. thanks. Unbranded नहीं, up your. I am not into cold drinks now. थोड़ा सा हटा रहा हूँ. Successful नहीं है तो क्या हो गया? मेरे पास आना। ये next option है. So I started with HDFC Standard Life. I think I should with an insurance company. I started with. It was a college placement. After completing my MBA, then in 6 months, I got another job into a cement company. 3 years I worked there into advertisements and brand promotions. Then switched to another cement company. And both were renowned companies across India. And then got into steel business, steel industry, and there I worked for about an year. And वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की थी which I learned in past 6 years in advertisements and brand promotions. काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे की मैंने which was all under me. हर चीज़ मैं खुद से own करता था. I was just GM there. Then 1 year I launched the brand. I did marketing also. I did expansion of the area. So events इसलिए आए क्योंकि जो मेरा प्रोफाइल था उसमें one part was events as well. So apart from advertisements, brand promotions में जब आते हैं, there were so many events जहाँ पे हम dealers को बुलाते थे conferences के लिए. From the dealers, engineers, architects, masons, retailers, everyone used to be part of different meetings and gatherings. And I liked to organize things there. So that's how I got into events. And और एक चीज़ देख रहा था कि मुझे investment ज़्यादा नहीं करना था.
So I started with zero here. I just मतलब एक रुपया भी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया. It was all about मुझे क्लाइंट को पिच करना है एंड आई वुड टेक बिजनेस. उसी के बाद मैं धीरे धीरे अपना इन्वेंटरी बढ़ाया, सब कुछ किया. So it's about 8 years now that I've started my business with the brand Casa Live Events and Productions. And बाकी तो आपको पता है how is it going थोड़ा बहुत तो now. So आप भी ये फील्ड से रिलेट करते हैं काफ़ी कुछ एंड काफ़ी जगह पे हम लोगों को आपकी हेल्प बहुत ज़रूरी है. एंड आपको भी पता होगा हाउ इज़ द मार्केट गोइंग. दैट्स वन थिंग. Before all that, I just wanted to ask one more question. Like the first event, because it was completely on your own, right? You have taken up everything on your own. There is no person or mentor to guide you. Like you have to meet with these people and all that. ऐसा कुछ भी नहीं है ना. So how much did you charge for the first event? So the first event In the first event of your career. So the first event was with my niece and nephew. उनका बर्थडे इवेंट था, फर्स्ट ईयर बर्थडे. एंड आई चार्ज वेरी, मतलब जितना हो रहा उतना ही. आई डिड नॉट चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा देयर बिकॉज मेरे सिस्टर के बच्चे हैं वो लोग. एंड मुझे भी एक्सपीरियंस चाहिए था कि हाउ इट विल बी. So let's talk about the first commercial event. First commercial event was after that. Even I don't remember that. So it went on then. मतलब there was no full stop. नंबर कुछ तो होगा. So when you just begin, it's all about the known network you get into. कि सागर has started this business. So तब तक मेरे पास क्या था, काफ़ी सारे लोग पहचान के थे because I did job and मेरा फैमिली स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि काफ़ी लोग पहचानते हैं मुझे. उन लोगों से काफ़ी हेल्प मिला मुझे. So स्टार्टिंग 1 साल उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया. They were known people from the past companies that they supported. And family से भी काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया. And उसी की वजह से मैं 1 year, see 1 year is very important. First year of the business is very, because वहीं पे होता है कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और बिजनेस में से निकल जाएंगे, या बिजनेस अच्छा आ रहा है तो then you continue forward. 6 months to 1 year तो वही होता है. So काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे. एंड डेफिनेटली आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कमर्शियली कितना चार्ज किया या किया. बट अब मैं जब सोचता हूँ ना तो ये लगता है कि शायद मैं बिकॉज दैट वाज माय बिगिनिंग, शायद मैं उन लोगों को और अच्छा सर्विस दे पाता. इट्स ओनली फर्स्ट ईयर, तो डेफिनेटली मेरे भी एक्सपीरियंसेस स्टार्टिंग में सब बट उन लोगों ने उतना मतलब सर्विस अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, उन्होंने सपोर्ट भी दिया. क्योंकि देर आर मैनी पीपल इन द मार्केट जिससे वो लोग करा सकते हैं, उनको अच्छी सर्विस भी मिल सकती है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी मिल सकती है. बट उन्होंने भी देखा कि ये स्टार्टेड बिजनेस, ऐसा सपोर्ट सभी को मिलना चाहिए. दैट्स व्हाट आई सर्विस के बारे में बोला था, बट आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट इन हियर. इन द middle of this 8 years, any point of time, there must be a point for every single person who are doing their professional work. At some point, they would be feeling some kind of a regret. Why did I choose this out of my way करके? ऐसा कुछ सोचा क्या? नहीं, never. So I was earning very मतलब अच्छा खासा कमा रहा था मैं when I was बोल दिया. कर दिया बाहर. So अच्छा खासा कमा रहा था when I was in job. Still till today I don't regret कि मैंने छोड़ के बुरा किया. अभी तक मुझे लगता है कि हाँ, that was the right decision only. I never regretted it, and touchwood, it's going better than what it was every time. Each day it's better. नाइस. एंड लाइफ ऐसी होनी चाहिए यार, जो डिसीजन लिए ना उस पर टिकना. नहीं टिके कल फिर दूसरा करना है बोले तो यू इसमें एक्सेलेंट हो, उसके बाद में गो टू समथिंग एल्स. दैट्स हाउ एवरीवन शुड बी लाइक दैट. ये छोड़ दिए. सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था मालूम लोगों में आजकल? अरे सागर कहीं पे भी मिलते, सागर अभी भी वही कर रहा क्या? बोला यस, क्यों चेंज करना है? अभी भी इवेंट्स कर रहा क्या? अरे तुम्हारा तो सीजन का सीजनल है, फिर क्यों? मतलब सीजन है, ऑफ सीजन है, वैसा नहीं रहता. ऑफ सीजन है तो भी मेरे पास इवेंट्स है. टचवुड
चलना तो चाहिए सभी का, ऐसी बात नहीं है, बट सीजन नहीं भी रहा ना, देर आर सो मेनी अदर एक्टिविटीज इन इवेंट्स जो चलते रहते हैं. सिर्फ वेडिंग एक ही नहीं रह गया ना, देर आर कॉर्पोरेट्स, देर आर बर्थडे पार्टीज, देर आर एंगेजमेंट्स, देर आर सो मेनी इवेंट्स. दैट्स द रीजन आई डोंट कीप पर्टिकुलर टू वेडिंग्स ओनली और कॉर्पोरेट्स ओनली. सेम थिंग मेरे साथ भी यही होता है. एवरीवन कम्स, हमारा सीजन कौन सा चल रहा है? सीजन 4 बिग बॉस. बिग बॉस सीजन 4 चल रहा है. सो क्या सीजन नहीं है ना सर? सीजन नहीं रहेगा तो बिजनेस थोड़ी बंद करके हाँ. एंड पीपल आउटसाइड द इंडस्ट्री डोंट रिकग्नाइज कि सीजन्स के अलावा भी काम होती है. एक्चुअल में क्या है, ये इंडस्ट्री को है ना, ऐसा सोचते हैं लोग कि दिस इज सीजनल बिजनेस. पूरा इंडस्ट्री के साथ में प्रॉब्लम. तो वैसा ही सोचने दो, एटलीस्ट नजर तो नहीं लगेगा. अरे रे रे रे, क्या बात है. सही है ना. सिल्वर लाइनिंग खोज के निकाल लेते हैं. बस वही है. एंड one more thing, in the morning before he has just come over here, there is one person saying about his driving. If you remember, someone is holding and sitting tight. ऐसा. Who was it, bro? सो अभी कोई हम लोग के पास बैठे थे, हाँ. वो बता रहे थे कि आपके साथ गाड़ी चलती कोई जो सोशल ज्यादा सब है, 2 लोग गाड़ी में ट्रिप में जो हमारा ट्रिप में और क्या बैठे थे, इसका राज क्या है? आपका गाड़ी में एक और मेरा गाड़ी में एक ऐसा पकड़ के बैठा था ना. इसके पीछे का राज क्या है? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड? थोड़ा सा इसे क्या नहीं, हर एक ब्रेक में ऐसा सामने आके बात कर रहे हैं. आई एम पैशनेट अबाउट ड्राइविंग एंड ऐसी बात नहीं है कि मेरे को रैश चलाने की आदत है. आई ड्राइव वेरी, अगले को प्रॉब्लम नहीं हो वैसा ड्राइव करता हूँ मैं. हाँ, अगले को प्रॉब्लम, इसके बारे में मैं बोलता हूँ. लास्ट ट्रिप में हमारा जो रात में आ रहा है वापस. अरे वो बोलने दो. वापस रात में आ रहे हैं, शायद 12 बजे हो गए. It was around 12 o'clock. And somewhere near Begumpet itself, where a person was, actually it was raining so heavily and extremely. that night was raining here. Yeah. हैदराबाद स्नट्स. And a person was stuck in the train somewhere on the other side of the road, and a person was clicking a video or photo something Taking from the this video. side. टीवी वाला या कोई शायद पता नहीं, वो वीडियो निकाल रहा है. हमारा गाड़ी बीच में ऐसा गया कि पूरा वाटर उसके भी ऊपर और गाड़ी के ऊपर Bro, गया. he is not helping at least. फोटो वीडियो निकाल रहा हो, देखा ना पानी है नहीं है. वही देख रहा था, सबको दिखा रहा था पानी है. भाई वो तो मेरा गाड़ी है. सेफ है, सेफ है, सेफ है. वही. अरे भाई पीछे डॉक्टर बन के निकल से है, थोड़ा बहुत तो चल जाता. So उस दिन इमरजेंसी हमने डॉक्टर को बोल के लगा रहे थे यार. वो अगर कैमरा ऐसा हिलाया तो मेरे गाड़ी के ऊपर आएगा करके मैं सोच रहा हूँ. सो इट्स नॉट अबाउट, ऐसा नहीं करता है, किसी को ट्रबल नहीं करता. गाड़ी मेरे हिसाब से अच्छा चलाता. बिल्कुल ट्रबल नहीं करता है, छोड़ के चले जाते हैं उधर फास्ट आराम से. अगले को मतलब से आगे वाला कैसा सोच के गाड़ी चला रहा, वो सोच के हमको चलाना पड़ता है गाड़ी. नहीं क्या होता, वो कभी भी किधर भी घुसेगा, अपने को प्रॉब्लम हो जाती. सो हैदराबाद ट्रैफिक काफ़ी बेहतर हो चुका है. स्टिल बहुत सारे लोग फॉलो करना चाहिए. स्टिल सेफ ड्राइव करना बहुत अच्छा है. दैट्स व्हाट इज. आज सुबह ही देख रहा था, मोबाइल फोन ड्राइविंग बहुत चल रहा है, न्यूज़पेपर में देख रहा था. सो कॉप्स आर गोना. भाई ये आपके मुंह से नहीं सुनना है मुझे, प्लीज. अरे we should inspire people, bro. We are on podcast. You cannot say. थोड़ा तो ऐसा बोलना होगा. आपका इम्प्रेशन क्या है कैजुअल टॉक्स विद कार्तिक के बारे में? आपका इम्प्रेशन क्या है पहले? नहीं भाई देखो, हम आज तक है ना सिर्फ लोगों को देखते आए कि पॉडकास्ट पे कैसे कैसे बातें होती है. सो फर्स्ट टाइम बीइंग ऑन द सेम काउच इज डेफिनेटली, आप ऐसे सब लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे, एवरीवन विल स्टार्ट फीलिंग अरे हम भी कुछ स्टार वार बन गए क्या है. सो इट्स एक्चुअली नाइस फीलिंग. सबको नहीं मिलता ना वैसे वैसे पॉडकास्ट. यू आर बिगनर, आई एम बिगनर, ही इज बिगनर फॉर द पॉडकास्ट एटलीस्ट. आप है ना बिगनर है. काफी एक्सपीरियंस है ऐसा कह रहा है. सो कुछ चीज़ें अपने जैसे आपका काम में कुछ होता होगा, हम लोग के पास क्लाइंट आते हैं, कुछ क्लाइंट बहुत पिक्यूलर चीज़ बोलते हैं और दिमाग जला के चल जाते हैं. आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? So there are so many social media apps which actually educate. अरे डॉक्टर से ज्यादा कोई भी बोल सकता है इसके बारे में. मालूम, दवाई लेके आ जाता डॉक्टर के पास, भाई ये लेना है ये लेना है. डॉक्टर बोला था ना "ये क्यों भाई तू आ क्यों रहा है?" So same thing happens with us. गूगल पे
सर्च करेंगे, सर्च इंजन्स पे सर्च करेंगे कि कौन सा है उनका इवेंट, उसके बारे में सर्च करेंगे, लेके आ जाएंगे सब कुछ। और मैक्सिमम टाइम्स मैंने क्या देखा है, जितने भी लोग जो चीज़ सर्च कर रहे हैं ना, 80% सेम ही चीज़ लेके आते मेरे पास, सब Pinterest का पहला पेज। वही चीज़ लेके आके बताते, अरे हाँ हाँ हो जाता। अब क्योंकि एक्सपीरियंस तो हो चुका है, उसके बारे में कर चुके हैं काम, फर्स्ट टाइम सिरफोड़ी हो गई है, ठीक है कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल के बोलते हैं। बट इट्स लोगों के पास है ना ऑप्शंस, अब हम बताने से पहले वो खुद लेके आ जाते हैं। तो मैं क्लाइंट को आजकल वही बोलता हूँ, भाई आपके पास कुछ ऑप्शंस है तो पहले लेके आ जाओ, देन वी विल वर्क ऑन इट, क्या क्लोजेस्ट कर सकते हैं वो क्लोजेस्ट करके देंगे आपको। That's how the market is nowadays, and we should actually respect it. हम लोगों को भी क्या है, we'll also get good opportunity for trying new things. हमारा experience बढ़ता है, so I always welcome those kind of things. And market is quite educated. People are quite educated and following so many things. अच्छा मजा आता है हम लोगों को भी काम करने में वैसे। And the network he's got is really good, so huge that if at all you name something is required, he'll have that contact. Thank you. है थोड़ा बहुत तो हैदराबाद में हवा है हमारी। सिर्फ हैदराबाद में वही क्वेश्चन पूछ हैदराबाद में है, पानी भी है। नाम में है भाई पानी, समंदर है। सो नहीं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स है क्योंकि इतने साल इंडस्ट्री में रह चुके हैं, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स हो गया है। सो कॉन्टैक्ट्स तो हर जगह से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं। सो पॉलिटिकल नेटवर्क के हिसाब से भी कुछ ना कुछ चाहिए करते, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टकराया हुआ रहेगा, किससे बात की हुई। मोबाइल फ़ोन में इतने कॉन्टैक्ट्स है, किसी को भी फ़ोन करेंगे यार, जिसके साथ सही रहे ना, अगला अपने आप सही रहता है अपने साथ। सो डेफिनेटली टचवुड लोग अभी भी वैसा मानते हैं, एंड हेल्प करना है किसी को भी तो करेगा। कार्तिक भाई इसका भी पूछना, हिडन टैलेंट कुछ है क्या करके, कुछ तो छुपा के रखा होगा ये भी। खुली किताब है भाई, क्या है कुछ तो होगा जो हिडन टैलेंट सबको नहीं पता होगा। हिडन मतलब हिडन टैलेंट। सो आई कैन तेलुगु में एक है, एस्पेशली आई मीन इन तेलुगु फर्स्ट स्टाइल से, तेल्लतोलु पिल्ली कल्लु। ओ गोरी चमड़ी और बिल्ली की आंखें वाले के बाद उसका भरोसा नहीं करना बोलते हैं। भरोसा नहीं करना करके तेलुगु में एक है। फिट मैटर है पूरी तरह से। हाँ बता दिया मेरे को। अभी किसके बारे में ये स्टेटमेंट आया है करके पूछ रहा हूँ मैं। काम के बारे में नहीं, काम के तो मुझे पता है, वो तो मेरा गारंटी है। और फैमिली के बारे में ही तो ही इज रिस्पॉन्सिबल मैन, दैट टिल दैट मच आई नो। और उसका वॉलपेपर भी फैमिली का फोटो ही रहेगा। तीसरा भाई आई एम बाहर का वैसा कुछ नहीं है, कुछ है नहीं। कट करो यार फिर बोल दो। दिस इज कैजुअल कन्वर्सेशन, सब बोल सकते हैं यहाँ पे। क्या सी मेरे पास है ना काफ़ी सारे फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स सो आई माइट नॉट बी सो एक्सप्रेसिव, सो जाके बात करने वैसा नहीं रहेगा, बट एक बार जब कॉन्वर्जेशन हो जाता है मेरा आपका या मेरा इनका, पीपल थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं मेरे साथ बात करने में। जब तक बात नहीं करेंगे ना तब तक थोड़ा लगता है कि यार इसको एटीट्यूड है वगैरह है, बट यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आई एम नॉट सो एक्सट्रोवर्ट, आई गो एंड स्पीक टू पीपल डायरेक्टली, बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं वैसे। सो वंस आई स्टार्ट स्पीकिंग टू देम आई डेफिनेटली मिंगल वेरी वेल विद देम। एंड एक गाना था ना हिंदी में, हाँ बोलो। सागर जैसे आंखों वाली, डूब के मर जाते हैं सर को मेरे को। जैसा ये कहता है सब लोग डूब के मर जाते हैं इसके आंखों में। I believe that hearing यहाँ कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो कि मेरे को पता नहीं है। आपको तो पूछना है, अगर पूछा तो आएगा बाहर। मुझे पता नहीं है, सो यही पूछना ट्राई कर रहा हूँ, चल क्या रहा है ये क्या बीच का जो conversation चल रहा है। नहीं, ये जो हमारा दोनों का पुराने गाने का शौक है, बहुत शौक है। ड्राइविंग में पुराने गाने डाल के we can go for hours anyway. we have gone like before also like that. For hours we have taken complete rounds of the city entirely. और
ऐसा तो देखो बुला लो, सिटी में घूमता है। सिटी में क्यों भाई, सिटी प्रॉब्लम क्या है कि वो रात में होता है तो बुलाना है तो बुला सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं। एक आधी बार तो बुला ही सकते हैं ना भाई, ऐसा थोड़ा ही है। आप बुला सकते हाँ, हैं, फिर आप होगे तो जरूर आ हाँ डेफिनेटली आना पड़ता है, ऐसा थोड़ा ही रहता। Then बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो रोक नहीं सकता है। नहीं रोक सकते बीच में से, तो पूरा राउंड मार के ही आना पड़ता, तो उतना टाइम तो लेके आना पड़ता। कम से कम 2 घंटे लगेगा। सही है। सो वेयर वर वी, क्या बात चल रही थी? दिलन स्टोरी। नहीं बात कर रहे थे आपके हिडन टैलेंट का। हाँ, टैलेंट का। सो लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, देन काफी सारे बात हम शेयर करते हैं। मतलब ऐसा कभी भी एक गुड लिसनर, मैं अच्छा पहले लोगों को सुनता हूँ, सुनने के बाद में जब बात करते हैं ना, इट कम्स आउट ऑफ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, पहले कभी कुछ एक्सपीरियंस किया है तो उसके हिसाब से, और जब मेरे को नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है। सो कुछ भी उठा के बोलना, विच आई सॉ मेनी ऑफ द पीपल डू, कुछ भी अगर नई एक्सपीरियंस है उसके बारे में भी कुछ भी बोलना, सो दैट आई डोंट डू। अब मेरे को नहीं आता वो, जो भी है इसके बारे में एक्सपीरियंस है तब बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट चीज काम में आती है हमारे। You know what? The first time when I met him, people would have never imagined that we would become this close. Even I did not imagine. We did not even imagine at any point of time, like right the first time when we met. And in the chapter also, I mean, in the place also where we met, every person was like thinking in a different way, in a different perspective. But once he started speaking with people, entire perspective has changed. He was like, now he is the, what we call, the most hot person. So मेरे साथ क्या हुआ? So first time when I met this group, मतलब हम लोग सब लोग मिले, तो डेली रिचुअल्स जो हमारा है, हम लोग जब मिले तो एक बात सामने, अरे तुम तो मारवाड़ी हो, तुम कैसा हमारे साथ बात कर रहे? मैं बोला मेरे को तो सबसे बात करना अच्छा लगता है, बट इट्स नॉट दैट के अगला क्या सोचेगा वो सोच के मेरे को थोड़ा ये होता। अदरवाइज मैं तो बात करने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ सबसे, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इट्स नॉट के मारवाड़ी रहना या एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो अलग सोच रहे हैं या मारवाड़ी जैसा और कुछ ऐसा है, एक बार भी ऐसा नहीं लगा। That I can say for sure. सो वैसा सोच है लोगों में कि मारवाड़ी है तो मारवाड़ी वालों से ही बात करेगा। ये को तो आज तक फील नहीं। मैं वैसा कभी सोचा नहीं, मैं तो सोचा भी नहीं था कि मारवाड़ी है कि नहीं है। मैं मारवाड़ी हूँ भाई। अरे है तो अलग बात है, लेकिन मैं कभी सोचा नहीं था। नहीं, बहुत सारे लोग वही सोचते हैं मेरे बारे में कि मैं मारवाड़ी नहीं हूँ। And सही है। और आप भी पूछ सकते हैं इसका हिडन टैलेंट्स को। भाई आपके बताओ, हमारे तो पूछ लिए आप। आज शाम को 8 बजे बाहर आ जाएगा। वो तो सबको मालूम है, सो हिडन टैलेंट नहीं बताना। आपका टैलेंट बताओ। वो जो हिडन है वो सच में हिडन है, सरप्राइज उनको था। ओह क्या बात है, हमारा शो में आ गया। हमारा शो बार बार नहीं बताएंगे मतलब अभी आज रात में रिलीज हो रहा है 8 बजे। 8 o'clock। रिलीज हो रहा है। सो अभी जब तक वीडियो निकलेगा तो रिलीज हो गया होगा, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हो, तब पता चलेगा हिडन टैलेंट। डेफिनेटली मेरा और पवन सर का भी एक हिडन टैलेंट है जो कि उन्होंने बताया है। कॉमन। नहीं डिफरेंट है। अच्छा अलग 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 है। डिफरेंट है। वो भी देखना ही पड़ेगा, बोलेंगे तो नहीं अभी। फिर एक बार बोल दिया तो फिर वापस एपिसोड कौन देखेगा जाके? तो क्रॉस प्रमोशन करना पड़ता है। क्रॉस प्रमोशन भी करना है। यस। सो आपको, आप एक चीज बताओ, जो आपके अपने जो जितना करियर है ना, जो शूटिंग करता है, जो वेडिंग वगैरह सब कुछ किए, सबसे क्लाइंट का नाम मत बताना, कुछ नहीं बता, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा चीज़ जो सबसे ज़्यादा इरिटेट किया हो आपको, या कभी लगा हो कि काहे ये वाला शूट, ये वाला शादी ले लिया या ये वाला इवेंट ले लिया, कौन लोग हैं, कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी, मतलब जो कि हम लोग वही समझ में रिलेट कर पाए हम लोग। So what happens is there are few event planners who will pass on the work to another event planner. They will speak to the client, they will take the advances, they will do everything with them. They will come and explain us कि ये करना है. Dealing with those kind of event planner, what I felt is a bit difficult. It is always better that मैं डायरेक्टली क्लाइंट से बात करूं, डायरेक्टली उनसे डिटेल्स लूं, उनको क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे से, हमारी कंपनी से,
डिटेल्स कैसे होने चाहिए, कलर कॉम्बिनेशंस कैसे होने चाहिए. सी कम्युनिकेशन में काफ़ी गैप आता है एंड आई टेक केयर के क्लाइंट का जो मूड है उस टाइम पे, जो डिटेल्स वो दे रहा है, वी कैच दैट पॉइंट एंड देन वी ट्राई टू डिलीवर अकॉर्डिंगली. वो हर एक बंदा नहीं कर सकता. एंड व्हाट हैपेंस इज जो नए लोग आते हैं ना, वो लोग ऐसा पास ऑन करते हैं काम. सो आई डिड वन सच इवेंट एंड वो इवेंट आई रिग्रेट कि मैंने क्यों लिया वैसा इवेंट. सो फ्रॉम देन आई थॉट कि ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए. डायरेक्ट क्लाइंट से बात करो या राम राम करके हट जाना उनके पास से, नहीं हो उस सकता. इवेंट में ऐसा हुआ क्या जो दैट यू आर रिग्रेटिंग? So he has taken advance and all from the client, and we actually delivered better than what he explained us. Um, the event day has come, setup was ready, everything is going on good. The person who took the event, he was not there. The client was so furious about it कि भाई जो बंदा है, ठीक है, at least respond to the call whenever he is calling. He is not receiving the calls. He is not replying to any messages. At last, the client has believed in him and given the work to him. Last में, because he was getting panicked, I went and spoke to him. Sir, क्या हुआ? क्या problem क्या है? क्या करना है? उसको थोड़ा, see, he is in a very tense situation at that time because the support that he must get from an event guy, he was not getting it. And when कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना इवेंट में, द मेन इवेंट खराब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. द शो मस्ट गो ऑन. सो आई वेंट स्पोक टू हिम, थोड़ा उसको काम किया एंड मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहा था बंदा. ही वॉज absconding. He did not pay me the complete amount. He took the complete amount from the client. वो सब गोलमाल करके he was absconding. So ठीक है, जो भी है, अब इवेंट तो खराब नहीं होना चाहिए. सी किसी के घर में शादी है, इट कम्स रेयरली, वंस इन अ लाइफ टाइम, वैसा भी होता है. सो उसका इवेंट खराब नहीं होना चाहिए. व्हाट आई फील, आई ट्राई टू कूल हिम डाउन. उसके जो प्रॉब्लम्स है छोटे मोटे सॉल्व कर दिए, हो गया. देन ही कुड कॉन्सेंट्रेट मच बेटर ऑन द मेन इवेंट. तो दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ द न्यू कमर्स शुड लर्न कि ऐसा नहीं करना चाहिए. व्हेन यू हैव टेकन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू बी देयर एंड ट्राई टू मेक द कस्टमर, द क्लाइंट हैप्पी. उसको कॉन्फिडेंस तभी आएगा इवेंट के लिए. उसके इतने गेस्ट आ रहे हैं, तुम है नहीं वहां पे यार, उसको कुछ भी छोटा काम है तो फिर कैसा ना. That's how the responsibility part is very important in events. एक ही क्लाइंट को 2 बार किया क्या? हाँ, एक ही क्लाइंट का काम 2 बार किया क्या? एक बार ही हुआ, मतलब ये वाला एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ. नहीं मैंने नहीं, मैं कह रहा कि आई एम आस्किंग if at all, if you have done one wedding event for one person, have you done again second time to the same person? happened. Repeat client. Repeat client. एक की शादी हुई, वापस शादी करे क्या पूछ रहे हैं. Yes. एक किया है. Yes. एक किया है. अरे जब वो कह रहे हैं, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन चल रहा है, क्या किया है करके. एक हुआ है वैसा. एक फर्स्ट शादी भी हम लोगों ने की है, सेकंड शादी दैट वाज अ स्मॉलर स्केल, बट किया हमने ये. सो सागर भाई, इतना वर्क तो हो गया. सो हाउ डू यू अनमाइंड, अपने आप को फ्री करने के लिए या अपने आप को एंजॉय करने के लिए, व्हाट डू यू प्रेफर, व्हाट डू यू? सो बिफोर कमिंग टू दैट, पवन जी बता रहे थे, वी आर सो गुड फ्रेंड्स नाउ. सो टच वुड अच्छे है वैसा तो, बट what I felt previously was अच्छे दोस्त सिर्फ स्कूल कॉलेज तक बनते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो एक मिथ है. सो हम लोग अभी मिले एंड डेफिनेटली माइंडसेट एक रहने से शायद ये अच्छे से हमारी फ्रेंडशिप अच्छे से चल रही है, टच वुड, एंड ऐसे चलते रहे. सो मेरा मिथ तो चलेगा ही. एंड अबाउट अनवाइंडिंग थिंग्स, डेफिनेटली बहुत हेक्टिक, बहुत प्रेशर रहता इवेंट्स में. वी डू सो मेनी बैक टू बैक इवेंट्स, काफ़ी सारे इवेंट्स चलते रहते. एंड वंस द इवेंट्स आर डन, एक सीज़न हुआ,
I try and go out somewhere. I at least go to the farm house. हमारा खेत में वगैरह में जाता है. It's not like कोई है क्या? farm house नहीं है. कोई नहीं है ना. So it's not a farm house, but it's a proper farm. तो डैड के साथ में थोड़ा वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ कर लेता हूँ पापा के साथ. So more नेचर के नज़दीक, मिट्टी से नज़दीक काफ़ी अच्छा लगता, रिलैक्सिंग रहता, एटमॉस्फेयर इज चिल, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता. सो वैसे अनवाइंड होना अच्छा लगता. देन उसके अलावा कहीं ना कहीं घूमना बहुत पसंद. गाड़ी ले लो, निकल जाओ कभी भी. सो दैट्स हाउ आई प्लान माई ट्रिप्स. कभी भी इतना एडवांस में प्लान करके कभी भी नहीं गया हूँ. इट्स मोस्टली चल भाई निकल पे. इट्स लाइक दैट. हम दोनों ऐसा ही है. चल भाई निकलते, हो गया, टेंशन बहुत हो रहा है, जाके आते हैं, थोड़ा रिलैक्स होके आते हैं. बिकॉज डेली जो हम लोग करते रहते हैं ना, इससे बाहर निकल के कुछ और करके आने से क्या होता है, स्कोप बढ़ जाता है काम का. हम लोग अच्छा सोचने की स्कोप बढ़ जाता है. सो डेफिनेटली इट हेल्प्स इन आवर बिजनेस. और एक चीज मैं बता सकता हूँ. One thing is the taste and the choice of his food. Especially wherever we go, the places which he say for food, the restaurants are amazing. I am That I very can choosy. that I can rely on completely. I'm very choosy, and I definitely like having food of various cultures, various states, various मतलब हर थोड़ी देर में टेस्ट बदल जाता है अपने पास. तो जैसे भाषा बदलती है वैसे तो टेस्ट हर जगह पे ये फूड का कल्चर बदल जाता. सो आई ट्रैवल. मेरे को खाने का बहुत शौक है ना, तो मैं उसके लिए भी बहुत ट्रैवल करता हूँ कि इधर जाके वो चीज़ खा के आना है. And So it's like that. we have recently gone to a trip or something like that, where in the middle of the night at 1 o'clock. First of all, I think we both have gone to beach in the middle of the night at around 1 o'clock. There were not many people. After that, बीच was completely empty. totally empty. एक भी नहीं दिख रहा था, कहीं से कहीं तक भी कोई भी नहीं दिख रहा था. And we got a call that we will also come pick up कर लो करके. बाकी के जितने भी लोग थे हम साथ में जो गए. कॉल आया था तो मैंने फिर से वापस गया, गाड़ी में लेकर आया सबको. और आने के बाद ये गाड़ी से स्पीकर निकाला, पुराने गाना चलाया, बस. Everyone पीसफुल, इट वाज सो पीसफुल. everyone slept on a wooden log, like keeping their head on the wooden log. एक छोटा टुकड़ा था वहां पे बीच पे पड़ा हुआ, ऊपर मूनलाइट मस्त गिर रहा था. In the middle of the night at इतनी 1 ज्यादा शांति थी, इतनी ज्यादा शांति थी. एवरीवन वाज मतलब ओनली पानी का आवाज आ रहा था, waves crash. wave crashing in, and it was so relaxing. मतलब it was detox. इतना experience है, इतना ऐसा experience ऐसा है. सोए कि कब उठे मालूम, जब बाकी के लोग खराटे मारना स्टार्ट करे ना, जब उठे हम लोग. तो वही मैं बीच में सो गए भाई. तो चलो खराटे मारना चलो. इससे या फिर नहीं, it's for an hour. Then फिर सबको ले लेके आए. almost like 1 to 2:30 kind of in the middle of the night it is. And no one was actually interested to come. फिर भी पवन came. We both went. Then बाकी के लोग भी, चलो हम भी चलते हैं. उन्होंने क्या कर रहे हैं जाके देखेंगे. चलो फिर जाके लेके आए सबको. लेके आके देन बहुत मजा आया. मतलब इतना हम लोग मस्ती किए थे उसके पहले, इतना नाच गाना सब हुआ, सब खाना वाना बहुत एकदम हाई लेवल पे थे. एंड हाई लेवल मतलब दारू वारू पी के नहीं, बट एनर्जी टू द हाई लेवल्स वहाँ पे थे. एंड जब खत्म हो रहा है, वी वेंट टू द बीच एकदम पीसफुल होके. बहुत मजा आया. एवरीवन लाइक्ड इट एंड एवरीवन एंजॉयड. सो दैट्स हाउ आई फाइंड माई सेल्फ अनवाइंडिंग. Yes. सबका एक एक स्टाइल होता है. सो ज्यादा शांत जगह अच्छी लगती. Well, if at all, if you leave him with the car and old songs, that is done. I would say that. That is good enough. You should also be, bro. I will be there. Definitely. Next time Karthik will also come. He will also join. चलो. So it was very nice talking. Same here. Avan bhai, thank you for staying back and joining this session. Thank you very much. Thank you. आपकी वजह से Thank you for revealing some secrets of yours. आपकी वजह से थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता चला. Otherwise, he has a very very good boundary around him, जो कि अरे in front of camera he is not ready to break. So that is there. But नहीं, बाउंड्री बोल के नहीं है, बट
it happens. Matlab, it takes some time for me to Open up. open up. But once it is done, आधा घंटे में बाहर नहीं आएगा करके बोल रहे हैं, बस. इनको 2-3 एपिसोड लगे. Yes. नहीं और कुछ भी नहीं. Before we go, we have a small oh, token of appreciation. thank you. This is yours. और मेरा खोल लो. आप भी वापस जाएंगे खुलना. और मेरा आपको कौन सा रिवॉर्ड मिलता है? अरे मैं थोड़ी होस्ट हूँ. नहीं, अब तो बन गए. सेकंड शो में आ रहे भाई तुम. फर्स्ट एपिसोड नहीं. गेस्ट थे, इसके बाद से आप होस्ट हो. ठीक है, I accept. धीरे धीरे ना चेयर्स बढ़ानी पड़ेंगी यहाँ पे. Also- सबको होस्ट बना रहे तो. नहीं, also I'll share my account details to transfer the payment amount. हाँ ठीक है, पार्टी आपकी तरफ से. ट्रांसफर कर लो, पार्टी में कर लेता हूँ. हो जाएगा. बस behind the scenes, cut it. This is. चलो. Okay, thank you guys for giving us the time to see the video. This is Thank you everyone. And let us conclude the second part of Casual Talks with Karthik. episode 3, Casual Talks with Karthik. Signing off, Karthik, Sagar and Pavan Shetty. Oh.